بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام مہر بانو ہے۔ میرا ایک بھائی ہے اور میں اور میرا بھائی بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے ساتھ حویلی میں رہتے آ رہے ہیں۔ پھپھو کہتی ہے کہ امی اور ابو ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ ہمیں اپنے پاس لے کر آئی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے بچپن میں ہمیں کیسے پالا تھا، لیکن اب بڑے ہو کر پھپھو ہم دونوں پر ہی بے حد ظلم کرتی۔ وقت پر کھانا نہیں دیتی، اسکول بھی نہیں پڑھنے دیا، جبکہ مدرسے کے لیے بھیج دیتی ہیں کیونکہ وہاں فیس نہیں لی جاتی۔ سارا دن بکریاں دے کر چرانے کو بھیج دیتی ہیں اور واپسی پر باسی روٹی اور تھوڑا سا سالن دے دیتی ہیں، یا پھر کبھی کبھی تو وہ کچھ کھانے کو دیتی ہی نہیں ہے، بس بھوکے پیٹ رکھ کر سزائیں دیتی رہتی ہے۔ اس حویلی میں پھپھو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، بس ایک چوکیدار اور باقی ملازم ہوتے ہیں، جن میں ایک بوڑھی بوا ہیں جو ہماری طرفداری کرتی رہتی ہیں، ہمیں وقت پر کھانا دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب کبھی پھپھو ہمیں مارتی تو وہی ہمیں سنبھالتی۔ ایک دن پھپھو نے آگ کا انگارہ میرے بازو پر رکھ دیا تو بوا نے 3 دن تک میرے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ اس کے بعد پھپھو کو پتہ چلا تو انہوں نے بوا کو بے حد سنائی تھی۔ ایک مرتبہ تو پھپھو نے حد ہی کر دی، انہوں نے میرے بھائی کا کان ایسے کھینچا کہ پھپھو کے ناخن اس کے کان میں پیوست ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میرا بھائی کان سے اس کے خون نکلنے لگ گیا تھا، لیکن پھپھو پھر بھی باز نہیں آئی۔ میرا بھائی چیختا رہا لیکن انہوں نے بھائی کو ذرا بھی نہیں بخشا۔ اس کی غلطی صرف اتنی سی تھی کہ اس نے بکری کو ایک پتھر مار دیا تھا، کیونکہ وہ بکری سینگ مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات پر سزا دیتے ہوئے پورا محلہ گٹھا ہو گیا تھا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی اور منع کیا تو پھپھو نے انہیں بھی جھڑکتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کا اپنا گھریلو معاملہ ہے اور کوئی بھی اس میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے، اور ساتھ ہی پھپھو نے بھائی کو دھکا دے کر دور دھکیل دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اور بوا نے اس کے زخم کی دیکھ بھال کافی دن تک کی، تب جا کر اس کا زخم ٹھیک ہوا تھا، لیکن پھر بھی نشانات کافی گہرے پڑ چکے تھے۔ بخشو، تم نے زمینوں کا ٹھیکہ کس کو دیا ہے؟ بوا صحن میں پلنگ پر دونوں ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے براجمان تھی۔ ان کے قریب ہی ایک منشی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بوا کے گھر کے باہر کے سبھی کام کیا کرتے تھے اور ہر چیز کا حساب کتاب کا کھاتا بھی انہی کے پاس تھا۔ بوا کے پاس کافی زمینیں تھیں اور مال مویشی بھی تھے، جن کی دیکھ بھال کو ملازم رکھے ہوئے تھے، جبکہ زمین ٹھیکے پر دے رکھی تھی اور اس سب چیزوں کا حساب منشی پر چھوڑ رکھا تھا، جو ہمارے دادا کے زمانے سے پوری ایمانداری سے حویلی میں کام کر رہے تھے۔ وہ ایک کسان تھا، میرا جاننے والا ہے، اس کو دے دیا ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ منشی نے سر اٹھا کر پھپھو کو دیکھا اور ساتھ ہی حساب کتاب کا رجسٹر بھی پھپھو کو پکڑایا، ساتھ ساتھ حساب بھی بتانے لگی۔ ہاں سب خیریت ہے، لیکن اناج کون لائے گا اور انہیں بیچ کر پیسے کب لاؤ گے؟ پھپھو نے رجسٹر کو ایک نظر دیکھ کر سر ہلایا اور پھر پین سے کچھ لکھ کر رجسٹر دوبارہ منشی کو واپس دے کر اپنا سوال کیا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، لیکن 2-4 دن میں لا دوں گا، آج میں نہیں لا سکوں گا۔ منشی بابا کی عمر تقریباً 55 سے اوپر تھی۔ اس عمر میں انہیں شوگر کا مرض اور اوپر سے جوڑوں کا درد بھی لاحق تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن کام نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ ساتھ ہی عمر کا تقاضا بھی تھا کہ بیماریاں جڑ پکڑ چکی تھی۔ پھپھو نے بتایا کہ وہ دادا کے ساتھ بھی ملازمت کرتے رہے تھے اور دادا سے بس 6-7 سال ہی چھوٹے تھے، لیکن دادا جوانی میں ہی چل بسے، جبکہ دادی بھی میری پیدائش سے 3 سال پہلے ہی فوت ہوئی تھی۔ ایسا کرو، تم کوئی جاننے والا دیکھا بھالا نوجوان دیکھو تو میرے پاس لے آنا۔ پین منشی بابا کو دے کر چند لمحے پھپھو خاموش رہی، لیکن اس کے بعد کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر منشی بابا سے کہا تھا۔ وہ پھپھو کی بات پر کافی حیرانگی سے پھپھو کو سر اٹھا کر دیکھنے لگے، جیسے ان کی بات سمجھ گئے ہوں۔ وہ کیوں منشی جی؟ منشی بابا نے حیرت سے پوچھا۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو، مجھے کوئی ایسا منشی چاہیے جو گھر کے ساتھ باہر کے معاملات تیزی سے کرے۔ کتنے دنوں سے کام بتایا ہے، لیکن تم ہو کہ طبیعت کی خرابی کو لیے بیٹھے ہو، کوئی ایک کام بھی تم سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اب میں کوئی ایسا منشی رکھوں گی جو میرے سارے کام بر وقت کرے۔ مفت میں پیسے نہیں دیتی، کام کے دیتی ہوں تو کام بھی وقت پر ہونا چاہیے۔ پھپھو نے اٹھ کر ہمیشہ کی طرح اپنا جنونی اور سخت انداز اپنا لیا، جس میں وہ ایک ظالم اور کرخت لہجے والی خاتون ظاہر ہوتی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی، لیکن جس لہجے میں وہ بات کرتی تھی، اس انداز میں وہ پوری کی پوری 40-45 کی ادھیڑ عمر عورت لگتی تھی۔
हालांकि पुप्पो की अभी भी शादी नहीं हुई थी और ना ही वो शादी का इरादा रखती थी। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मुझे कोई मिलेगा तो मैं बता दूंगा। अभी मैं जाऊं? मुंशी बाबा ने सर हिलाया और साथ ही इजाज़त चाही। हाँ जाओ। पुप्पो से इजाज़त मिलते ही वो रजिस्टर थामे कुर्सी का सहारा लिए वहां से उठे और साथ ही उन्होंने कुर्सी के साथ रखी अपनी लाठी उठा ली। लाठी के सहारे चलते हुए वो वहां से चले गए। तुम दोनों भी आज बकरियों को ठीक से पेट भर कर घास खिला कर लाओ, रोज बरोज कमजोर होती जा रही हैं। ऐसे लगता है जैसे बिना खिलाए वापस ले आते हो। अगर आज भी मुझे इनके पेट भरे नजर नहीं आए तो आज का दिन खाना नहीं दूंगी तुम दोनों को, फिर इनकी तरह भूखे पेट ही रखूंगी, बैठे रहना। फिर एकदम पुप्पो की हम दोनों पर निगाह पड़ गई। हम दोनों ही काफी देर से ये मंजर पूरी तवज्जो से देख रहे थे, लेकिन अब पुप्पो को पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने देखते ही फौरन अपना हुक्म सादिर किया और हमें बावर करवा कर वो वहां से चली गई। मेरे भाई ने हमेशा की तरह धमकी सुनकर मुंह फुला लिया। बीबी जी, ये एक लड़का मुझे गांव के कोने से मिला है, कहता है नौकरी करनी है, घर से भाग कर आया है। मैंने सोचा आपको बता दूं, लगता भी शहर का है, शायद आपके किसी काम का हो। दूसरे दिन ही बख्शो मुंशी एक 24-25 साल के नौजवान लड़के के साथ हवेली चले आए थे। वो लड़का दिखने में काफी प्यारा था, उसके कंधे पर काला बैग भी लटका था। पुप्पो ने उन्हें वहीं बिठाया और खुद बूढ़ी बुआ को चाय पानी का कहने लगी और वहां से चली गई। पुप्पो मुड़कर मुंशी जी की तरफ मुतवज्जो हुई। वो दोनों धूप पर रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अच्छा तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। पुप्पो ने मुंशी को वहां से भेज दिया, क्योंकि वो जल्दी में थे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए पुप्पो ने उन्हें फारिग कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? पुप्पो ने सामने बैठे उस नौजवान को देखते हुए उसका सरता पैर एक भरपूर जायजा लिया और फिर उससे नाम पूछा, वो जो इर्द गिर्द के हालात से हैरत में घिरा हुआ था। जी, राफे नाम है मेरा। उसने पुप्पो के सवाल पर यकदम अपने हवासों में लौटकर एक नज़र पुप्पो पर डालकर सर झुकाए जवाब दिया और दोबारा दाएं बाएं सर घुमाकर देखना शुरू कर दिया। क्या करते हो? पुप्पो उसे अपनी नज़रों के इशार में लिए हुए थी और सारा जायजा ले रही थी। अभी पढ़ाई मुकम्मल की है। दूसरे सवाल पर भी उसने पहले की तरह ही अंदाज रखा, जैसे वो गायब दिमाग से जवाब दे रहा हो, जबकि तवज्जो सारी की सारी इर्द गिर्द के मनाजिर पर ही थी। घर से क्यों भागे हो? पुप्पो का ये सवाल गैर यकीनी तौर पर था, जिस पर उसने एक लम्हे को सर उठाया। मैं जिससे शादी करना चाहता था उसके लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए घर से भाग आया और अब नौकरी करना चाहता हूँ ताकि अपने अखराजात उठा सकूं और फिर उस लड़की से शादी करने के काबिल हो सकूं। लड़के ने पूरी तफसील के साथ ही जवाब दिया, जबकि उसके तासुरात से लग रहा था कि शायद वो बुरा मना रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। शायद वो दिखने में थोड़ा खड़ूस नजर आ रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे घर के काम करवाने, जैसे खेतों की जिम्मेदारी, माल मवेशियों का चारा डालने का सामान, हर चीज़ का हिसाब किताब से लेकर आखिर तक सब कुछ होना चाहिए। यह काम बख्शू बाबा करता था, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो ये काम कर सके, इसलिए तुम अगर कर सको तो बता दो। पुप्पो को वो काम के हवाले से काफ़ी पसंद आया था। उसका लिया दिया सा अंदाज भी अच्छा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसे सारी काम की तफसीलात बताकर काम का पूछा। उन्हें लगा कि वो शहर से आया है तो क्या पता वो काम नहीं कर सकेगा या फिर काम जानकर ही इनकार कर देगा। जी मैं सब कर लूँगा। उस लड़के ने सर हिलाकर हाँ में इकरार किया तो मैं भी हैरान रह गई। बख्शू तुम्हें सब काम समझा देगा, वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, अभी तुम बैठो, चाय नाश्ता करके जाना। पुप्पो ने उसे काम का बताया और साथ ही खाने का कहकर खुद वहाँ से चली गई। क्योंकि उन्हें उस वक्त सोना होता था इसलिए वो चली गई। हम दोनों बहन भाई भी वहाँ से बकरियों के रेवड़ की जानिब गए और उधर से बकरियाँ खोलकर बाहर की जानिब जाने लगे थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, आप दोनों छोटे से हो, ये काम क्यों कर रहे हो? हमने मुड़कर देखा तो सामने ही वो नौजवान राफे खड़ा काफ़ी हैरानगी से हमें काम करते देखकर पूछ बैठा। पुप्पो ने बोला इसलिए। हमने आराम से जवाब दिया तो उसने तगैर से हमें देखा और चुपचाप खड़ा हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको चॉकलेट दूं? उसने अचानक पुरजोश होकर कहा, क्योंकि हमारे चेहरे उतर गए थे। इसलिए उसने अपनी जेब से 2 चॉकलेटें निकाली और मुझे और मेरे भाई को एक एक पकड़ाई, जिसे खोलकर हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया। वो इतनी मज़े की थी कि हम दोनों ही मुंह में डालते ही मुस्कुराए। ये मज़े की है, मैंने बेख्तियार कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ वो तो है, तुम दोनों भी तो प्यारे हो। ऐसा करो, जाओ ये ले जाओ,
वापस आना, फिर बात करेंगे। वो हंसते हुए बोला और साथ ही हमें वहाँ से भेज दिया। मैं और मेरा भाई चॉकलेट खाते हुए वहाँ से निकल आए थे। बकरियाँ चरा आए हो? दूसरे दिन हम दोनों बकरियाँ चरा कर आए तो पुप्पो ने हमें देख लिया। मैंने सब बकरियों को रेवड़ में जाकर छोड़ दिया और वापस आई तो मेरा भाई चूँकि छोटा सा था तो उसे मैं इतना काम नहीं करने देती थी। उस वक्त भी वो काफ़ी निढाल खड़ा था। जी पुप्पो, मैंने इस बात में सर हिलाया। लेकिन ये क्या है? इस बकरी को देखो, इसका पेट भरा हुआ लगता है क्या? तुम दोनों खेलने जाते हो कि बकरियां चराने? मैं मुफ्त में तुम दोनों को नहीं पाल सकती। हमारी पुप्पो ने अचानक एक कोने में खड़ी बकरी को देखते हुए मुझे धाड़ कर कहा, क्योंकि वो बकरी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थी और खाना पीना भी उस पर कुछ खास नज़र नहीं आता था। लेकिन फिर भी पुप्पो ने उसे देखकर मेरा कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी। पुप्पो कान छोड़े, दर्द हो रहा है। मैंने तकलीफ से कराते हुए पुप्पो से इल्तिजा की, जिस पर उन्होंने कान मजीद सख्ती से पकड़ लिया। क्यों छोड़ूं? कोई काम ढंग का करते हो? मेरा बस चले तो तुम दोनों को ज़मीन में गाड़ दूं। पुप्पो ने कहरबार नज़रों से देखते हुए हम दोनों को गुस्से से कहकर अपना नया इरादा जाहिर किया, जिसे सुनकर मेरा भाई थोड़ा गुस्से से झिंझलाया दिखाई देने लगा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप ही का कान छोड़े क्यों मार रही हैं? मेरे भाई ने आगे बढ़कर पुप्पो से कहा, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा था कि कान का दर्द कैसा होता है। उसी की वजह से ही उसने पुप्पो को हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो मजीद भड़क उठी। ये आ गया बहन का हमायती, रुको ज़रा, तुम्हें भी मारूं। पुप्पो ने मुझे छोड़कर उसे पकड़ लिया। उन्हें शायद हुक्म भरे अंदाज पर गुस्सा आया था, जिस पर उन्होंने भाई को पीटना शुरू कर दिया और पहले की तरह कान भी जकड़ लिया। आप ही? मेरा भाई तो मैं ये मंजर गायब दिमागी से देखने लगी। मेरा दिल दहल गया कि एकदम पुप्पो के करीब हुई मैं। पुप्पो छोड़े मुझे, मैं बकरियां फिर से चराने ले जाती हूँ, आप इसे छोड़ दें। मैंने पुप्पो से हाथ जोड़े फरियाद की ताकि वो उसे छोड़ दें, क्योंकि भाई की चीखें मुझे अपने दिल पर गुजरती महसूस हो रही थी। वो थोड़ा गुस्से का तेज था, इसलिए हर गलत हरकत उसे एकदम गुस्सा दिला देती थी। इसलिए मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो बिफर ही जाता, जिसका नुकसान या तो मुझे उठाना पड़ता या फिर उसे अपनी ही जान पर। फिर भी बाज आने की कोशिश नहीं करता था वो, खा कितना भी तशद्दुद बर्दाश्त कर चुका हो। शायद ये ढीठपन की इंतहा थी, या फिर सर्द व गर्म और छोटी सी उम्र में बड़े काम करके दिल और जिस्म उन सब का आदी हो गया था। वो तो तुम्हें हर हालत में लेकर जानी पड़ेगी। पुप्पो ने मेरी फरियादें सुनकर भाई को छोड़ दिया और मैंने उसे उठाकर गले लगाते हुए उसे दिलासा दिया था। साथ ही उसका कान भी मसलने लगी, जिस पर उसे तकलीफ भी बहुत होती थी। बेटा, इसे खाना खाने दो, सुबह से दोनों बाहर ही थे, खाना खाकर भेज देना। अचानक बूढ़ी बुआ वहाँ आई और साथ ही पुप्पो को कितने निहायत आराम से पुकार कर कहा। मेरी तो भूख ही उठ चुकी थी, जबकि मेरे भाई को भूख बहुत लगती थी। वो पहले से ही कह रहा था, आप अगर इसकी हिमायती हैं तो आपको भी साथ ही भेज दूंगी। खामोश रहकर तमाशा देखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप भी जानती हैं कि जैसे इन दोनों के माँ बाप का हाल है, वही हाल मैं इनका भी कर दूंगी। पुप्पो ने अचानक कहरबार नजरें बूढ़ी बुआ पर डालकर उन्हें धमकाया और साथ ही हमें भी घूरने लगी। उनका अंदाज देखकर मैं और भाई बकरियों को लिए दोबारा से घर से बाहर खेतों की जानिब चल पड़े। अगर थोड़ी देर भी वहाँ मजीद रुकते तो पुप्पो ने हमें दोबारा से पकड़कर मारना शुरू कर देना था। आप ही भूख लगी और पुप्पो ने बकरियां चराने वहाँ भेज दिया है। घर से हम दोनों जब बाहर निकले तो भाई ने मुझे भूख का कहकर रुलाना शुरू कर दिया था। हमेशा से यही होता आया था, उसे भूख लगती और मैं फिर उसकी कैफियत देखकर रोने लगती। पुप्पो जाने इतनी पत्थर दिल क्यों थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी दिल पत्थर हो रहा था। भाई का रोना मुझे कभी रुलाता तो कभी जी चाहता कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, और आज उसका मुंह बना देखकर दिल ही दिल में बेचैन हुई। काश मैं थोड़ी बड़ी होती और उसे कुछ बना कर खिला देती। ये सोचकर मुझे रोना सा आया, साथ ही अम्मी की याद आने लगी। हम दोनों बहन भाइयों ने बचपन से ही पुप्पो का हर जुल्म चुपचाप सहा था, ना कभी शिकवा किया और ना ही कभी एहतजाज, जिसकी बदौलत पुप्पो आज तक हम पर जुल्म करती आ रही थी। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। भाई ने मुझे सोचों में गुम पाया तो मेरा कंधा हिलाते हुए अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मैंने सर हिलाते हुए अपनी भूख का उसे भी बताया।
अब कुछ और भी नहीं कर सकती जिससे उसकी भूख मिट जाती और मेरी उदासी भी ख़त्म हो जाती। फुप्पो हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? और उन्होंने हमारे अम्मी अब्बू के साथ क्या कर दिया था जिसकी धमकी उन्होंने बूढ़ी बुआ को भी दे दी है? मेरी बात सुनकर भाई मायूसी से थोड़ा सा आगे चलने लगा था, लेकिन फिर एकदम रुका और कुछ याद आने पर सर खुजाते हुए मुड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी बात पर मैं भी एकदम हैरत से दासी खड़ी रह गई। उन्होंने वाकई कुछ देर कबल बुआ को धमकी दी थी, जिसे उस पल मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन भाई के सवाल पर मैं चौंक उठी। हम छोटे से थे इसलिए नहीं पता। हाँ, घर जाकर बुआ से पूछेंगे। मैंने नफी में सर हिलाते हुए लाइलमी का इजहार किया। उसके मुतालिक कभी भी हमारी पुप्पो से बात नहीं हुई थी, जबकि और भी किसी मौजू पर वो कोई बात करती तो हम सुन लेते थे, वरना खुद से बात करते हुए उन्होंने हमेशा काम का बोलना होता था या फिर जुल्म ढहाना होता था। और मुझे तो अब शदीद तरीन वाली अभी भूख लगी थी, कुछ खाने को जी चाह रहा है। भाई ने दोबारा से मुंह बनाकर मुझे कहा तो मैं उसकी शक्ल देखकर कुछ सोचने लगी कि इसके चेहरे पर तो कैसे तरोताज़गी थी। मैं कुछ बोलूं, कुछ ही लम्हों में मेरे जहन में एक बात आ गई थी। आओ खेतों से गन्ना तोड़कर खाते हैं, मैंने भाई से कहा और साथ ही करीब एक गन्ने के खेतों में घुस गई। ये खेत एक पड़ोसी का था, जिसका घर हवेली से 3-4 घर आगे था। भाई को लिए मैं आगे आई और 2-3 गन्ने काफ़ी मुश्किल से ही सही लेकिन तोड़ लिए। कुछ हिस्सा दांतों से कुतर कर भाई को दिया, 2 उसे दिए और एक खुद अपने लिए ही रखा। कौन हो तुम? क्यों गन्ना तोड़ रहे हो? अभी मैंने भाई को पकड़ाया ही था कि अचानक हमें दूर से एक चिंगार की आवाज़ सुनाई दी। फिर खेत का मालिक सीधा हमारे सर पर आन खड़ा हुआ। उसके हाथों में एक लकड़ी की मजबूत लाठी थी, जिसे देखकर हमें डर सा लगा कि कहीं वो लाठी न मार दे। हमें भूख लग रही थी इसलिए हमने तोड़ा है। मेरे भाई ने मासूमियत से गन्ने को दांत से कुतरते हुए आराम से जवाब दिया, जिस पर वो शख्स मजीद गुस्से में आ गया। मैंने डर के मारे यकदम अपने भाई को मेरी कमर की ओट में छुपा लिया था। वापस रखो वरना इसे गन्ने से पिटाई करूंगा। उस शख्स ने लाठी के जरिए गन्ने की जानिब इशारा करते हुए हुक्म दिया। भाई छोड़ो, खाने दो इन्हें, मैंने ही कहा था 2 गन्ने तोड़ लो, ये तो डर रहे थे। अभी हम गन्ना वहां फेंक कर जाने ही वाले थे कि अचानक राफे वहां आया। उसने आराम से खेत के मालिक से कहा, जबकि मैं उसकी बात पर हैरान हुई कि राफे ने हमें कब बोला था कि ये गन्ना खाएं। वो झूठ बोलकर हमें मुस्कुराकर देख रहा था। अच्छा तो तुमने कहा था, चलो खैर है, ठीक है बच्चों तुम खाओ, मैं ज़रा दूसरे खेतों को देख कर आऊँ। राफे की बात सुनकर वो शख्स हमें खाने का बोलकर लाठी लिए वहाँ से निकल गया, जबकि मैंने मुड़कर राफे को देखा। आपने कब कहा कि गन्ना तोड़ लें? आपने ये झूठ क्यों बोला? मैंने बड़े ही गुस्से से देखते हुए राफे से कहा तो वो मुस्कुरा दिया और मुझे देखने लगा, इसलिए कि ये गन्ने का मालिक तुम लोगों को कुछ कह ना पाए। मेरी सलाम दवा होती रहती है और तुम्हारी पुप्पो ने ये गन्ने खरीद लिए माल मवेशी के लिए, तो इसलिए बोल दिया कि 2-3 तोड़ लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। राफे ने हमें इत्तला दी थी। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था या फिर नया होने की वजह से उसे पता नहीं था कि पुप्पो हम पर कितना जुल्म करती है, वरना वो हमारी मदद ही नहीं करता, क्योंकि आखिर को वो भी पुप्पो का मुलाजिम था और उन्हीं से तनख्वाह लेता था। फिर अगर उसे सब पता होता तो वो उनके हुक्म की पासदारी करता, हमारी मदद का तो सोचता भी नहीं। अच्छा आप पुप्पो को बता दोगे कि हमने गन्ना खाया है? अचानक गन्ना खाते मैंने फिर से पूछ लिया कि शायद वो पुप्पो को बता दे और पुप्पो फिर से हमें मारने ही न लग जाए। ये भी कोई ख़ास बात है जो बताई जाएगी? मैं सिर्फ काम के हवाले से ही बात करता हूँ। ऐसा करो तुम लोग जाओ, बकरियां भी अब पेट भरकर घास फूस खा चुकी होंगी, घर जाकर खाना वगैरह खाकर मदरसे जाओ, वक्त होने वाला है। उसने पहले तो हमें हैरत से देखा, फिर बकरियों का भरा पेट देखकर हमें 2-3 गन्ने मजीद तोड़कर देते हुए हिदायत दी और घर जाने का बोला। गन्ने राफे के हाथ में पकड़कर फिर मैं और मेरा भाई खेतों से निकलकर सारी बकरियों को लेकर घर चले आए। इनको खाना डाल दें और ज़्यादा सालन डालने की ज़रूरत नहीं है। रोटी उधर ही मैंने एक तरफ रखी हुई है, वही दे दें, वैसे ही पड़ी हुई है। हम घर आए तो बकरियों को बांधकर मुंह हाथ धोकर खाना खाने को कमरे में आ गए। पुप्पो ने हमें देखकर बुआ को हिदायत दी और दूसरी जानिब पड़ी दोपहर की रोटी की जानिब मुतवज्जे किया जो उन्होंने मेरे लिए रखी हुई थी। कुछ लिहाज करो, मेहमानों से वापस आई रोटी तुम इनको दोगी, बच्चे हैं ये,
ये तो सोच लो। बुआ ने किधरे चिढ़कर पुप्पो को देखकर कहा। बुआ को भी बुरा लगा, इसलिए उन्होंने मुंह पर कह दिया, आजकल आप बहुत ही ज्यादा इनकी हिमायत नहीं कर रही हैं? बुआ को देखते हुए पुप्पो ने पूछा। उन्हें शायद ये अंदाज कतन पसंद नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से भरे अंदाज में हम दोनों बहन भाई और बुआ को देखे जा रही थी। क्या करूं, बच्चे हैं, इनकी शक्ल देखो, तुम्हें तरस नहीं आता कि कितना जुल्म कर रही हो? बुआ ने मेरे भाई को थामकर पुप्पो से न जाने क्या कहा कि देखो इसका चेहरा और मासूमियत। लेकिन पुप्पो तो शायद अंधी हो गई थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। जाने किस जुल्म का वो हमसे बदला लिए जा रही थी, जो कि पूरा होने को ही नहीं आ रहा था। मुलाजिम हो तो मुलाजिम बनकर रहो, ज्यादा उछल कूद की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगेगा इस हवेली से बाहर निकालने में। पुप्पो ने काफी झिंझलाकर बुआ से कहा और खुद वहां से उठकर चली गई, क्योंकि राफे किसी चीज का हिसाब लेने के लिए बाहर खड़ा था और वो ये मंजिर आंखों से देख रहा था। छोड़े बुआ, रोटी ला दें, मैंने बेजारी से बुआ को बोला, जबकि पुप्पो हवेली से निकलकर सहन में जाकर बैठ चुकी थी। बुआ भी बावर्ची खाने से सब्जी का सालन और साथ ही रोटी भी ले आई। बुआ, आपसे कुछ पूछना है। मैंने नवाला तोड़ते हुए भाई के सामने रखी रोटी और खुद भी अपना नवाला मुंह में डाल लिया। रोटी खाते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो बासी रोटी नहीं बल्कि बिल्कुल ताज़ा रोटी है। लेकिन फिर मैंने बुआ से सवाल कर दिया और इस बात को भी मैंने फरामोश कर दिया। मुझे उस पर अम्मी और अब्बू के मुतालिक पूछना था। हाँ बेटा, आप पूछो, क्या पूछना है? बुआ ने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए मुझे देखकर कहा, आपके सामने पुप्पो ने बोला था ना कि उन्होंने अम्मी व बाबा वाला हाल हमारा भी करना है, तो आप हमें बताएं ना कि उन्होंने अम्मी बाबा को क्या कर दिया था। मैंने पहले उनसे तस्दीक चाही, जिस पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद मैंने दूसरा सवाल कर दिया, जिस पर बुआ के चेहरे का रंग फक हुआ। मेरे सवाल तो उनके लिए काफ़ी हैरान कुन थे, या शायद उन्हें तवक्को ही नहीं थी। बेटा, ये बातें मत पूछो, वरना तुम्हारी पुप्पो ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। बुआ ने एकदम मेरे मुंह पर हाथ रखे मुझे बाज रहने को कहा। मैंने हैरानगी से उन्हें देखा। आप बताएं ना, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। मेरे भाई ने भी खाना खाते हुए इस आस से बुआ को देखा। शायद इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी वो। क्या बताने की बात हो रही है, कोई मुझे भी तो बताए जरा। अचानक पुप्पो चली आई और वो राफे से हिसाब किताब करके एकदम अंदर आई और आते ही हमारी बात सुन ली। कुछ भी नहीं, वैसे ये पूछ रहे थे कि मैं खाना कैसे इतना अच्छा बनाती हूँ। मेरे या मेरे भाई के बोलने से कबल ही बुआ ने खुद बोलकर बात खत्म करने की कोशिश की, ताकि उन्हें अंदाजा ना हो कि दर हकीकत हमने क्या पूछा था। बुआ हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अगर खाने की तरकीब दे दियो तो जाकर बर्तन धो लें, साथ में चाय का पानी भी चूल्हे पर चढ़ाएं। ये खाना खुद भी खा सकता है, हाथ पर दोनों सलामत हैं। मैंने भी तोड़ा नहीं है कि आप अपने हाथों से खिलाई जा रही हैं। पुप्पो ने नौखुद से देखते हुए हमें कहा और बुआ को भी हुक्म दिया। वो सर हिलाए वहां से उठ खड़ी हुई। यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? मैं और मेरा भाई सहन में क्रिकेट खेल रहे थे। भाई ने कहा था कि वो बोर हो रहा है और उसे कुछ न कुछ खेलने का जी चाह रहा है, इसीलिए मैंने मदरसे की किसी सहेली के घर से गेंद और बल्ला मंगवाया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में मसरूफ थे कि अचानक पुप्पो चली आई। उनका चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी कि अब पक्का हम दोनों को डांटेंगी और शायद 2-3 थप्पड़ भी मार देंगी। खेल रहे हैं पुप्पो? मेरे भाई ने आराम से गेंद मेरी जानिब फेंकते हुए कहा। ये घर तुम दोनों के खेलने के लिए नहीं है, मेरा घर है। खबरदार जो सहन को क्रिकेट से बर्बाद किया तो। पुप्पो ने मेरे हाथ से बल्ला लेकर जमीन पर पटकते हुए सहन को देखा, साथ ही हम दोनों पर चिल्लाने लगी। वो जब आई थी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब वो मुस्कुराहट गुस्से में बदल चुकी थी, जिसका अंदाजा मुझे हो गया था। अच्छा पुप्पो, नहीं खेलते? ये क्या लेकर जा रही है? हमें भी देना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने अचानक से उनकी बात मान ली। ये पहली मर्तबा हुआ था, वरना पुप्पो जब भी तशद्दुद करती या कुछ कहती तो जवाबन उसका अंदाज भी गुस्से से भरपूर होता। लेकिन आज पहली मर्तबा उसने ये बात मानने के साथ साथ पुप्पो के हाथ में एक शॉपर को देखते हुए पूछा, जिसमें न जाने क्या खाने की चीज़ थी, जिस पर मेरा भाई भी पिघल गया था। तुम लोगों का खाना मैंने बावर्ची खाने में रख दिया है, वहाँ जाकर खा लो। तुम दोनों को मैं दोबारा इस तरफ ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुप्पो ने पहले तो सख्त जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर एकदम चुप होकर आराम से कहकर वहाँ से पिछले क्वार्टर की जानिब चली गई। हमेशा वो सुबह या शाम के पहले क्वार्टर की जानिब जाती थी, लेकिन आज दोपहर को उस तरफ से निकली थी, जो मेरे लिए काबिल हैरत बात थी।
आपी ये पुप्पो रोज़ किधर जाती है? पुप्पो के वहाँ से जाते ही मेरे भाई ने मेरे करीब आकर सवाल किया, जिस पर मुझे हंसी आई, क्योंकि वो यूं करीब आया जैसे गहरा राज बताने लगा हो, और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर मासूमियत ही बड़ी प्यारी थी। मैं खुद नहीं जानती, अगर पता होता तो बता देती। मैंने लाइलमी से कंधे उचकाए और ज़मीन पर पड़े गेंद बल्ले को देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने मुझसे जिद की थी कि उसे कुछ खेलना है, लेकिन अब खेलना छोड़कर अजीबोगरीब सवालात में उलझा था और मुझे भी उलझा रहा था। अच्छा चले ना, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की तो मैंने सर इस बात में हिलाते हुए कहा, हाँ चलो, लेकिन ये गेंद और बल्ला उठा लाओ। पुप्पो ने देख लिया तो जला देंगी या बाहर फेंकेंगी। मैंने ज़मीन पर पड़े गेंद और बल्ले की जानिब उसे मुतवज्जे किया। आज ही सहेली से मंगवाया था, अगर पुप्पो को गुस्सा आ जाता तो वो उसे बाहर फेंक देती, इसीलिए मुझे पहले एहतियात करनी पड़ी। नहीं फेंकती, अगर फेंका तो मैं उनका दुपट्टा आग में जला दूंगा। जो नया सूट लेकर आई है बनवाने को देने जाएंगी तो वो भी गंदा कर दूंगा। मेरे भाई ने आदत से मजबूर वही बात कह दी, वरना कुछ देर कबल वाला अंदाज देखकर मैं समझी थी कि वो समझदार हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे और बातों से ज़रा सा भी नहीं लग रहा था कि वो सुधरा है, बल्कि मज़ीद बिगड़ने वाली हरकतें अपना ली थीं। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। मैंने भाई को तिरछी निगाहों से देखते हुए घूरा ताकि वो थोड़ा सा समझदारी से काम ले, लेकिन था तो वो बच्चा सही और गलत बताने की कोशिश करना चाह रही थी ताकि कुछ उल्टी हरकत न कर बैठे। वो भी तो हमारे साथ बुरा सलूक करती है ना, वो गलत नहीं है क्या? मेरे भाई ने चिढ़कर कहा। ये बात तो साफ जाहिर थी कि वो कभी भी सुधर नहीं सकता था। वो बड़ी है ना, सख्ती इसलिए करती है ताकि हम हर काम कर सके। मैंने हंसी दबाते हुए आराम से समझाने की कोशिश की। मुझे डर लायक हो गया था। उसकी हरदर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसका अंजाम पुप्पो को ही सहना था, और साथ ही बेशुमार तशद्दुद भी। भूखे पेट भी इसीलिए रखती हैं? भाई के इस सवाल पर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं बन पाया, इसीलिए उसे साथ लिए हवेली के अंदर आ गई और उसे खाना देने लगी। राफे, ये भैंसों का चारा उनको डाल कर आओ। तुम मेरी बात सुनो, ये कागजात डाकखाने में जमा करवा दो। राफे भैंसों को चारा डाल रहा था और साथ ही घास भी काट कर लाया। एक मुलाजिम के खरफोदगी हो गई थी, जिसकी वजह से राफे ने उसके काम की जिम्मेदारी भी अपने सर ली थी और उसी की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन अचानक पुप्पो ने आकर राफे को वो कोई कागजात जमा करवाने का कहा, और भैंसों को चारा में और मेरा भाई डाल देंगे। ये सुनकर मेरे ओसान खता हो गए। बकरियों को संभालना थोड़ा आसान लगता था, लेकिन भैंसों के करीब जाने से मुझे बेहद डर लगता, लेकिन इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुप्पो ने कह दिया सो कह दिया वाला मामला था। मैं डाल देता हूँ, फिर ले जाऊंगा। राफे ने नफी में सर हिलाते हुए कहा और खुद ही जाकर भैंसों को चारा डालने लगा। उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई कि हम दोनों को काम न करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद पुप्पो ने राफे को चिंगारती आवाज में पुकार कर रोक लिया। मैंने अभी का कहा है, शाम से पहले जमा करवाना है, जरूरी है, पहले ही देर हो चुकी है। पुप्पो ने खूनखार नजरों से राफे को घूरते हुए अपना जुमला दोहराया। अच्छा ठीक है, ये लो बानो, तुम डालाओ। पुप्पो ने सुर्ख चेहरा लिए सख्त तासुरात से कहा और राफे को हिदायत भी दी। राफे मुंह हाथ धोकर आया, क्योंकि उसके हाथ और कपड़े चारे से लदे थे। उसने कमीज भी झाड़ी और कागजात वगैरह लिए, और जबकि मैं और मेरा भाई डरते डरते भैंसों को चारा डालने लगे। पहले पहल तो जी उछलकर बाहर आने को बेताब था, लेकिन फिर एकदम ही डर गायब हो गया। हमने सब चारा डालकर ही सुकून का सांस लिया। पुप्पो तो वहीं से क्वार्टर की जानिब फिर से बढ़ रही थी। देखो, पुप्पो आज फिर उस क्वार्टर की तरफ जा रही हैं। मेरे भाई ने चारा डालने के बाद अपने हाथ पैर धोते हुए अचानक मुझसे कहा। मैंने सर उठाकर एक नज़र पुप्पो पर डाली और दोबारा सर झुकाकर गीले हाथों को दुपट्टे से साफ करने लगी। हाँ पता है, मैंने सर हिलाने पर इत्तफा किया, क्योंकि मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकती थी। आप ही किसी दिन हम उस जगह जाकर देखेंगे कि पुप्पो उधर क्यों जाती हैं। मेरे भाई के शैतानी दिमाग ने बिलाखिर अपना सोचा समझा मंसूबा मेरे दिमाग में भी उंडेलने की कोशिश कर ही ली थी, जिसे सुनकर मेरे ओसान खता हो गए थे। कोई ज़रूरत नहीं है, चुप करके बैठो, पुप्पो को पता चला तो मार देंगी। पहले किया जुल्म थोड़ा करती हैं जो मजीद जुल्म सितम बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना चाहते हो। मैंने उसे अच्छी तरह झाड़ पिलाने की कोशिश की ताकि वो ये बात दोबारा न कर सके। आज पहली मर्तबा की थी तो पहले ही उसे इस चीज़ से दूर रखने का तहैया कर लिया था। खैर है ना, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। मेरे भाई ने वही अजली मासूमियत का लिबादा ओढ़े चेहरे पर बेचारगी तारी कर ली थी, जिसे देखकर मैं हर बात मानने को तैयार होती थी, और अभी भी यही होने वाला था। अच्छा कुछ सोचती हूँ, मेरे ख्याल में रात के वक्त जाना बेहतर रहेगा। जब पुप्पो सो जाएंगी तो आराम और सुकून से रात के पहर वहाँ जाया जा सकता है।
میں نے سر ہلائے کہا اور چند ہی لمحوں میں یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ رات کے پہر ہی پھپھو کے سونے کے بعد کارروائی کی جا سکتی ہے، ورنہ دن دہاڑے یا پھر جاگنے کے پل کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، آج رات کھانا کھا کر جب سب سو جائیں گے تو ہم یہ کام کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تو بھائی نے بھی مجھے بول کر میری تائید چاہی۔ جواباً میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اچانک ہی مجھے حویلی کی دوسری طرف سے کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جانے کس نے چھپ کر ہماری یہ باتیں سن لی تھی۔ کون ہے وہاں؟ میرے بھائی نے آگے بڑھ کر آواز لگائی، لیکن مجھے اس کے بولنے پر شدید غصہ آیا۔ اب جو بھی ہوا، کیا پتا وہ وہاں سے پھر سے بھاگ جائے۔ شش، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو چپ کروایا، جس نے پوچھ کر غلطی کر دی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ میرے بھائی نے رک کر پریشان سے ہو کر پوچھا۔ اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، رکو، تمہیں ہی پڑی تھی نا تجسس کی، اب سکون ہے؟ ملازموں نے سنا تو پھپھو کو بتا دیں گے، سارے انہی کے وفادار ہیں سوائے بوڑھی بوا اور رافع کے۔ میں نے اس کا کندھا چلا کر پوچھا تو مجھے تو یہ غم لاحق ہو گیا تھا کہ نہ جانے کس نے سن لیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی سن لے گا؟ میرے بھائی نے فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیا کہہ سکتی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید کوئی پرندہ ہوگا جس کا شور ہوا ہو۔ چلو تم کام کرو اپنا۔ میں جب وہاں پہنچی تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے بھائی کو بھی بے فکر کیا اور دونوں وہاں سے حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ آرام سے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے تیز تیز قدم اٹھا رہے ہو، پھپھو کو پتہ چل جائے گا۔ رات ہوئی تو میرے بھائی نے اپنی فرمائشیں پھر سے شروع کر دی، جس کا مطلب تھا کہ آج اپنی ارادوں میں 1 منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹنا، جبکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن پھر بھی بھائی کو لیے مجھے وہاں آنا پڑا، ورنہ میرے بھائی نے تو سننا ہی نہیں تھا۔ جبکہ میں نے اسے چھوٹے اور دھیمے قدم اٹھانے کو کہا، وہ تو تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی چلتا تو یقینی طور پر ہمارا پکڑا جانا لازم تھا، اس لیے میں نے اسے ٹوک کر آرام آرام سے چلنے کو کہا تھا۔ میں تو آرام سے جا رہا ہوں، آپ کو ہی مسئلہ ہے؟ یہ موم بتیاں بھی پکڑا دی ہیں۔ اس نے موم بتیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اس مرتبہ مجھے شدید غصہ آیا۔ موم بتیاں میں نے اندھیرے کی وجہ سے باورچی خانے سے اٹھا لی تھی تاکہ راستہ تو نظر آئے۔ اس پر بھی میرے بھائی کو اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہا اس سردی سے ٹھٹرتی رات میں وہیں صحن پر بیٹھ جاؤں۔ اگر یہ نہیں لے کر جائیں گے تو پھر نظر کیسے آئے گا؟ ساری روشنیاں تو بند پڑی ہیں، اوپر سے اندھیرا بھی اتنا ہے۔ آرام سے چلو، قدموں کی آواز نہ آئے۔ ایک تو یہ شوق بھی تمہیں ہی تھا ادھر جانے کا، اور اب تنگ بھی خود ہی ہو رہے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے موم بتی لے لی تاکہ وہ آسانی سے چل سکے اور میرے لیے کوئی نئی مصیبت ہرگز کھڑی نہ کرے، ورنہ تو بس آفت سر پر آنے والی تھی۔ ہاں آرام سے ہی چلوں گا، یہ موم بتی بھی خود ہی پکڑ لے۔ اس نے مجھے موم بتی دیتے ہوئے بیزاری سے کہا اور آرام آرام سے اب کی مرتبہ قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ قدم ہی چلی تھی کہ مجھے پیچھے سے تیز قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے بوڑھی بوا تیزی سے ہماری جانب آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا بھائی مجھے رکتا دیکھ کر پیچھے مڑا، وہ بھی بوا کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت تو وہ ہمیشہ سو جاتی تھی اور صبح فجر کے وقت ہی اٹھتی تھی، لیکن آج وہ کافی جلدی اٹھ کر ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ تم دونوں رات کو یہ موم بتیاں لیے کہاں جا رہے ہو؟ بوا نے ہمارے سر پر پہنچ کر ہمیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی گہری نظریں رات کے اس پہر کافی روشن دکھائی دے رہی تھی۔ بوا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے بھائی نے بوا سے بس یہی سوال کیا۔ مجھے بھی اس سے یہی امید تھی۔ یہی سوال تو میں تم دونوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھی بوا زمانہ شناس عورت تھی، ایک دم سے الٹا سوال کر دیا، جس پر میں اور میرا بھائی جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے سوال کر رہے تھے۔ میرا منہ دیکھنے لگ گیا، جانتا تھا کہ اب کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ بوا نے گھورا، بوا کے بے شمار گھورنے پر وہ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے آنکھیں نکال کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ بتاؤ، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آخر کون سے نیک ارادے تمہارے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ بوا نے قدرے تیز آواز میں جھنجھلا کر پوچھا۔ ایک رات کا پہر، دوسرا سخت جھاڑے کی سردی،
तीसरा ठंडी हवाएं। उस मौसम में बाहर खड़े रहना मुहाल था और बुआ अपने सवालों की फहरिस्त लिए वहीं खड़ी थी। बुआ, हम उस क्वार्टर में जाना चाहते हैं। अचानक मैंने सच कहने की ठानी। जबकि भाई फंसा ही चुका था तो फिर ना बताने का क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने बताने में ही आफियत समझी। जबकि बुआ सुनते ही हत्थे से उखड़ चुकी थी। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी फुप्पी को पता चला तो तुम दोनों को भी वहाँ कैद कर देगी। बुआ ने दबे दबे अंदाज में हमें बावर करवा दिया। क्यों? हमने क्या कर दिया जो वह हमें कैद करेंगी? मेरे भाई ने अजली ढीठपन का मुजाहिरा करते हुए पूछा। वही तो उस पल फसाद की जड़ था। तुम दोनों अभी बच्चे हो, नहीं जानते कि तुम्हारी फुप्पी क्या कुछ कर सकती है। बेहतर है कि चलो आराम से कमरे में सो जाओ, वरना मुझ बूढ़ी का भी लिहाज नहीं करेगी। अगर मैं ना देख लेती तो तुम दोनों तो चले जाते और फिर जाने कैसी कयामत आती। बुआ ने अपनी लाठी के इशारे से हमें हवेली के अंदरूनी जानिब धकेलते हुए अपनी कड़वी कसीली बातें भी सुनाई। जबकि अंदर जाते हुए मैंने अपने भाई को काफ़ी देर तक घूरा। अगर वो ये सब कुछ करने को ना कहता तो उस वक्त हम दोनों सोए हुए होते और उल्लू की तरह जागे ना रहे होते। अरे, इधर रोशनी जल रही है, किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। अचानक मेरे भाई ने सरगोशी की। आवाज़ों से पीछे मुड़कर देखा और उल्टे कदम दोबारा क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। मैं भी उसी के पीछे पीछे भागी। अरे रुको, मत जाओ, रुको। बूढ़ी बुआ ने मुड़कर हमें देखा तो वो भी हमारे पीछे पीछे भागी आई। मैं और मेरा भाई क्वार्टर में घुस गए और सामने का मंजर देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने ही एक मर्द और औरत बैठे थे जिनकी हालत काफ़ी अबतर हुई पड़ी थी। चेहरे पर गर्द पड़ी थी। जबकि सामने ही राफे और पुप्पो दोनों गुस्से से एक दूसरे के सामने खड़े थे। तुमने ऐसा क्यों किया? राफे पुप्पो से कुछ पूछ रहा था। जबकि पुप्पो शदीद गुस्से में थी, उनके चेहरे पर करख्तगी छाई हुई थी। ये मेरा सौतेला भाई है, इसने मेरी पसंद की शादी नहीं होने दी थी, इसलिए मैंने बदले का सोच लिया और सारी उम्र के लिए भाई और भाभी दोनों को यहाँ पर क्वार्टर में कैद कर डाला। इसकी सारी जायदाद हत्या ली। लोगों की नज़र में ये मर गया है, लेकिन मेरी नज़र में ये जिंदा रहा। इसके बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं, ताकि जब वो बालिग हों तो उनसे अंगूठे लगवा कर सारी जायदाद अपने नाम कर लूं। तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। पुप्पो ने जब सब हकीकत अपने मुंह से बयान की तो मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही। वो मर्द और औरत मेरे माँ बाप थे, जिन्हें पुप्पो ने हमें मरा हुआ बताया था। ये सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई थी? राफे ने चिल्ला कर पूछा, जबकि पुप्पो कहका लगाकर हंसने लगी। उनको शर्म आई थी जब मैं किसी को पसंद करती थी, बजाय शादी करवाने के इनकार कर दिया? पुप्पो ने तलखी से कहा। बुआ ने हमारी आंखों पर हाथ रखना चाहे तो हम दोनों बहन भाइयों ने सर झटक कर खुद को बुआ की गिरफ्त से आज़ाद करवा दिया और थोड़ा अंदर चले आए। वो लड़का चर्स पीता था, इसलिए मैंने नहीं होने दिया, मेरे अब्बू ने अपनी लागर आवाज़ में बताया। उनकी आवाज़ में कर्ब था, अजियत थी। अब पता चल गया, इन्हें खोलो। राफे ने अब्बू की बात सुनकर पुप्पो से कहा, तुम कौन होते हो? नौकरो नौकर बनकर रहो, वरना मार दूंगी। पुप्पो ने गुस्से से उसे देखकर अपने साबका अंदाज में गुर्रा कर कहा। राफे को धमकाया, मुझे मारोगी? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं एक जिन ज़्यादा हूँ। इस हवेली में 20 साल से रह रहा हूँ। इन बच्चों पर जुल्म करती थी, इसलिए भेस बदल कर इंसानों के बहाने तुम्हारे घर आना पड़ा। अब तुम्हारा अंजाम भी होगा। राफे ने यह कहकर उसी पल अपना चेहरा बदल दिया और एक जिन्नाती रूप लिए सामने आ गया। उसके चेहरे पर शोलों की मानिंद आग थी। राफे ने पुप्पो को बालू से पकड़कर उसे पूरे क्वार्टर की दीवारों से मार मार कर अधमुहा कर दिया। पुप्पो की फलक शगाफ चीखों ने हमारे कान के पर्दे तक फाड़ डाले थे। वो चीख रही थी। जिनजादे ने पुप्पो की टांगें क्वार्टर में पड़े लोहे पर मार दी और वो टांगें कटकर वहीं जख्मी होकर रह गई। उसी के साथ पुप्पो चीखें मार मार कर बेहोश हो गई थी। मत मारो, छोड़ दो। अब्बू ने एकदम से चिल्लाकर जिनजादे को रोका। वो बेहोश पुप्पो को पकड़कर फेंकने ही वाला था। छोड़ दूंगा, लेकिन ये दोबारा ऐसी हरकत न करे, इसलिए इसे अपाहिज बना रहा हूँ। जिनजादे ने ये कहकर पुप्पो को कटी टांगों के साथ वहीं फेंक दिया। पुप्पो अब मुकम्मल अपाहिज हो गई थी। मेरे अब्बू और अम्मी को उस क्वार्टर से निकाला गया था।
اور نہلا دھلا کر وہ بالکل درست ہو گئے تھے۔ لوگوں کو جب پھپھو کی حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ ہم نے رافع کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بر وقت ہمارے والدین کو بچا لیا۔ اس کے بعد رافع تو واپس چلا گیا، لیکن حویلی اور حویلی کے لوگوں کی زندگی خوشیوں سے بھر سی گئی تھی، کیونکہ میں اور میرا بھائی اسکول جاتے تھے۔ واپسی پر امی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا کر مدرسے چلے جاتے۔ اس کے بعد امی ابو کے ساتھ ہی وقت گزارتے تھے۔ باقی سارا کام ملازموں کے حوالے ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔